وہ بچوں کے اندر کچھ کمی رہتا ہے سر، تو ہم ایز اے ٹیچرس ہمارا ریسپانسبلٹی بنتا ہے کہ ہم ان بچوں کی کمزوری کو دور کر کے ایک اچھا قابل بچہ اب میری خود کی فرسٹ ایکسپیرینس ہے ہاسٹل میں، تو سر مجھے نہیں لگا تھا پہلے میں نے جیسا ایکسپیکٹ کیا تھا، کیونکہ یہ اگر کچھ سال چلے یا کچھ مدت چلے تو اس سے تو کچھ بچوں کے اوپر اتنا فوکس نہیں ہوگا سر. تو ریمیڈیل کلاس کی بات کریں تو بہت ہی اچھا ڈیسیجن لیا ہے، اور آگے بھی ایسے ریمیڈیل کلاس ہونا چاہیے. اسی صاحب کے سامنے جو بھی ہماری مانگیں تھی، جو بھی نیڈس تھی، ہم نے ان کے سامنے رکھا. تو ریمیڈیل کلاس بچوں کے لیے بہت بینیفٹ ہو رہا ہے سر، کیونکہ بچے جو ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے، ہم ریویژن سیریز زیادہ کیا جاتا ہے سر. خاص کر بہت سارا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ کھانا زیادہ لاش سے سلچک مچھات پین. جہاں تک بچوں اور پیرنٹس کا فیڈ بیک ہے تو وہ اس کو ایک اچھا موقع سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ آ کے سب سے پہلے ہمارے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ جاتا ہے، اور یہاں پہ آ کے ہمیں ٹاپرس کیسے پڑھتے ہیں، جس طرح سے بچے فیڈ بیک دے رہے ہیں، جس طرح سے ٹیچرس اپنی ڈیوٹیز نبھا رہے ہیں، اس سے یقیناً اس کا فائدہ بچوں کو ہو رہا ہے. تو ریمیڈیل کلاس کی بات کریں تو بہت ہی اچھا ڈیسیجن لیا ہے، اور آگے بھی ایسے ریمیڈیل کلاس ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ڈاؤٹ سیشن رکھتا ہے ہمارے ایک گھنٹے کے لیے، اور 1 گھنٹہ ہمارا کلاس چلتا ہے، اور بہت زیادہ ایسے ہی سپورٹ رہتا ہے سر. اور ٹیسٹ رہتے ہیں، ٹیسٹ تو ہمیشہ لیتے ہیں، منڈے کو لیتے ہیں. جب بھی ہماری نیو ٹاپک ختم ہو جاتی ہے، یوں ہی ٹیچرس ہماری ٹیسٹ لیتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں کہہ کے نہیں بتاتے ہیں، کہہ کے یعنی کہ نہیں رکھتے ہیں، سرپرائز ٹیسٹ رکھتے ہیں. یہی سے ہماری سر ایسے امپروومنٹ ہوتی ہے سر. اور ہمیں تھینک فلی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے اپنے اندر امپروومنٹ. اور اس سے ہمیں زیادہ سر کی ڈر کی وجہ سے بھی، ٹیچرس کی ڈر کی وجہ سے بھی ہمیں پڑھنے کا بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوتا ہے. تو ٹیچرس کوآپریٹ کرتا ہے بہت تھینک فل ہے سر ٹیچرس کے، خاص کر ہمارے پرنسپل سر کے. سنڈے کو یہاں سے چھٹی ہوتا ہے سر، اس سے تھوڑا جو پیس ہوتا ہے نا کنسسٹنٹ وہ نہیں رہ پاتی سر. جب جو ہی گھر پہنچاتے ہیں تو وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں. جو پڑھ رہے تھے نا، تو ہم یہ بول رہے ہیں کہ الٹرنیٹ ہو چھٹی، ایک سنڈے چھوڑنا ہے اور ایک سنڈے نہیں چھوڑنا ہے، ایسی یہ پرابلم ہے. تو آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا ہوگا نا سر سے؟ نہیں کہ ابھی کر رہے ہیں. ایکچولی ہم نے پہلے کیا تھا سر، ایک سنڈے چھوڑ کے بھی رکھا تھا. پھر یہاں پہ تھوڑا سا ان کے ابھی جو گرمی کا ٹائم ہے تو کپڑے جلدی گندے ہو جاتے ہیں، ان کو باقی بھی صفائی کرنا پڑتی ہے، تو تھوڑا سا ایشوز ہیں. تو اس حساب سے پھر ایک دن کیا ہوا کہ یہاں ہی کپڑے دھوئے گئے، تو پانی کا بھی تھوڑا سا یہ رہتا ہے. اور ابھی ہم ان کو میں نے کہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے سے ہم پھر الٹرنیٹ سنڈے کر دیں گے. فی الحال یہ والا مہینہ ہم یہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو ریمیڈیل کلاس کی بات کریں تو بہت ہی اچھا ڈیسیجن لیا ہے، اور آگے بھی ایسے ریمیڈیل کلاس ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. بعد میں پہلے پیریڈس میں جب 10 بجے سے 4 بجے تک جو ٹائم ہے اس میں ہم لوگ سلیبس پہ فوکس کرتے ہیں، اور ریمیڈیل کلاس میں ہم لوگ اس کے ڈاؤٹس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے یہ ریمیڈیل کلاس رکھنا. اگر گھر میں رہ کے پڑھائی کرنا اور ہاسٹل میں اس طرح کے ریمیڈیل ہاسٹل میں بیٹھ کے پڑھائی کرنا، کتنا فرق ہے اس میں؟ وہ بہت گیپ ہے. پہلے ہی جو سب سے بڑا دشمن ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ موبائل فون،
اس سے چھٹکارا پاتے ہیں ہم لوگ. اور یہاں پہ آ کے ہمیں بہت فائدہ مند ہوتے ہیں گھر سے زیادہ, کیونکہ گھر پہ ہمیں بہت ڈسٹریکشن دیکھنے کو ملتا ہے. کبھی جب پڑھائی میں تھوڑا پڑھنے لگتا ہے تو کوئی دروازہ پہ آ کے بلاتا ہے, کوئی آتا ہے بلاتا ہے, تو مطلب بہت ڈسٹریکشن ہوتا ہے. اور یہاں پہ آ کے سب سے پہلے ہمارے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ جاتا ہے, اور یہاں پہ آ کے ہمیں ٹاپرس کیسے پڑھتے ہیں, کیسے وہ لوگ مطلب ٹائم کو مینیج کرتے ہیں, ہمیں مطلب سب یہ اس کا مینجمنٹ مل جاتا ہے. تو ہاسٹل بہت اچھا ہے, اور میں تھینک فل کرنا چاہتی ہوں اپنی ایڈمنسٹریشن کا کہ انہوں نے ایسا کچھ سسٹم رکھا. سر فرسٹ آف آل تو ہم اسی سر کا بہت زیادہ تھینکفل ہیں کہ وہ مطلب یہاں پر آ کے یعنی کہ انہوں نے وزٹ کیا. ہمیں مطلب یہ فائدہ ہوا کہ ہم یہاں پر اپنی جتنے بھی یعنی کہ نیڈس ہیں, یا پھر جتنے بھی جو بھی چیزیں ہماری یہاں مطلب کمی ہے, جو بھی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتا ہے, ہم مطلب کھل کے بتا سکتے ہیں سر. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے سر کہ ہمیشہ بار بار ٹیچرس کو مطلب کمپلین کرنا وہ بھی تو اچھا نہیں لگتا ہے سر. اب جب بھی مطلب اب یہاں پر ای سی سر آئے, ہم سے پوچھا, اور ای سی صاحب کے سامنے جو بھی ہماری مانگیں تھی, جو بھی نیڈس تھی, ہم نے مطلب ان کے سامنے رکھا. سر ٹیچرس تو بہت زیادہ سپورٹیو ہے, خاص کر ہمارے پرنسپل سر, ان کا تو بہت زیادہ سپورٹ رہتا ہے. جب بھی مطلب ٹیچرس مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ مطلب یہ ہو کہ مطلب 4 بجے تک اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے سر. مطلب وہ لوگ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, ہمیشہ رہتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ہماری ڈاؤٹ سیشنز رکھتے ہیں, جتنے بھی مطلب 1 گھنٹے کے لیے ہمارے ڈاؤٹ سیشن رکھتے ہیں. پھر ہماری ٹیسٹ رکھتے ہیں, مطلب جتنے بھی ٹاپکس ختم ہوئے ہیں ہمارے پریویس پیپر سالونگ کرتے ہیں, تو اس سے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. تو ٹیچرس اور پرنسپل کا تو بہت زیادہ سپورٹ ہے سر. چلنا چاہیے سر, اگر مطلب ہمارے پاس ریسورس ہو تو ویسے بھی ہونا چاہیے نا سر. اب یہاں لداخ میں, کارگل میں تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتا ہے, تو سر ایسا چلنا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے سر. اب میری خود کی فرسٹ ایکسپیرینس ہے ہاسٹل میں, تو سر مجھے نہیں لگا تھا پہلے, میں نے جیسا مطلب ایکسپیکٹ کیا تھا وہ مجھے ایسا نہیں لگا تھا کہ ہم ایسا ہوگا یہاں پر, ایسی ہاسٹل میں ایسی سچویشن یا پھر ایسی چیزیں ہوگی. بٹ سر یہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے, اور ہم گھر پہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے تھے. یہاں پہ آ کے سر ٹائم کی مطلب قدر ہم جانتے ہیں. یہاں پہ آ کے مطلب بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے سر. اگر ایک ہی ایک آدمی جو اتنی اگر پڑھاتے ہیں بایو فزکس کو, ایسی تکلیف ہوتا ہی کھانا شانا ٹھیک ملتا ہے. دوسرے ہمیں جب بھی ہم دوسرے جگہوں میں جاتے ہیں, اب ہاسٹل کے لیے ہمیں الگ سے فی بھرنا پڑتا ہے, لائبریری کے لیے بھی, روم کے لیے بھی. اب یہاں پہ سب کچھ فری میں مل رہا ہے, سب کچھ مطلب اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. جب کھانا بھی ہو یا کچھ بھی ہو, اور بہت پلینٹی آف ٹائمس ہوتے ہیں سر, ٹائم ہوتا ہے ہمارے پڑھنے کے لیے. تو سر یہ بولتے ہیں سر کہ مطلب وداؤٹ اینی فی یہاں پر مطلب اتنی اچھی فیسلٹیز ہے. مطلب کوئی بھی مطلب اسٹاف جو ہے کوئی بہانہ نہیں کرتا, خوشی سے بیٹھتا ہے. صحیح بولا. اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت مطلب اچھے سے جتنا ہم انٹرسٹیڈ ہے اس سے ڈبل ہمارے ٹیچرس انٹرسٹیڈ ہے. پہلے تو مطلب ہاں ngachang remedial class lenchas pu ngachang hostel lenchas pu बने फायदा छिनुक क्योंकि ngachang एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए. मतलब हमें फ्री टाइम पर ngachang remedial class तंग से ngachang मतलब जैसे खांगमा ngatang दे सब मतलब last sang dena song से मतलब ठीक बसे ngatang टाइम में छात पेंसिल भी फिला दारे देंग हॉस्टल हम दुख पे वजह से ngachang ज्यादा टाइम थोबिंदु ये मतलब ठीक छिनु पा ngachang. कोई इशू लग रहा है सर सामने बताओ. पढ़ाई को लेके कुछ नहीं है. हमें इन क्लासों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, और हमें लगता है कि आगे भी ऐसी क्लास चलनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा जो है बहुत फ़ायदा है सर. क्योंकि हमें इधर टाइम टेबल के हिसाब से जो है क्लास पीरियड होता है, और हम टेबल के हिसाब से ही चलते हैं. उस हिसाब से हमें मतलब होमवर्क करना और क्लास रीडिंग उसके लिए अलग सा क्लास होता है सर. तो हमें घर से ज़्यादा इधर पढ़ने का ज़्यादा मौका मिलता है, तो हमें आगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. जिम्मेदारी है आप क्लास टीचर के साथ थोड़ा बैठो, बच्चों को भी बुला लो. मैंने शिव साहब मतलब सब बैठा के सबों को बैठा के थोड़ा
कंसेंसस कर कि इनको एक एडिशनल क्लास शुरू कर दो, उनके चैप्टर के हिसाब से एक बेसिक क्लास इनको शुरू करो, ठीक है। फिर 15 दिन के बाद हम आएंगे, देखेंगे इनका प्रोग्रेस वगैरह, ठीक है। सर हर साल की तरह इस साल भी रेमेडियल क्लास चल रही है सर। एज ए फैकल्टी मेंबर बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सर? क्या आप लोग भी खुश है कि इस रेमेडियल क्लास से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेमेडियल क्लास बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट हो रहा है सर, क्योंकि बच्चे जो है इसमें क्या किया जाता है, हम रिवीजन सीरीज़ ज़्यादा किया जाता है सर। तो अगर जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर है, जो काबिल बच्चे हैं, हम उन पे फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए मतलब उनका अगर बेसिक कमज़ोर है तो हमें यहाँ पे टाइम मिल जाता है सर रात को, कि हम बच्चे की सबसे पहले जो बेसिक प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का हमें मौका मिल जाता है सर। तो इसके बाद जो अगर बच्चे को कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या कोई किसी चीज़ में अगर उनको प्रॉब्लम है सर, तो उनको अच्छी तरह उनका प्रैक्टिकली सोल्यूशन हम यहाँ पे बच्चों को दिया जाता है सर। तो कमज़ोर बच्चों के लिए ये रेमेडियल क्लास बहुत अच्छा है सर। और ख़ासकर CBSE एग्ज़ाम में बच्चों का राइटिंग स्किल सर, राइटिंग स्किल पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सर। और बच्चों के ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे जो CBSE एग्ज़ाम है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो आता है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के बेस पे आ जाता है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों का, कि क्वेश्चन को किस तरह वो एनालिसिस करना है बच्चे को। क्योंकि आज अचानक CBSE आने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है सर टीचर्स को, मगर हमें काफ़ी ट्रेनिंग भी दिया गया सर। तो वही ट्रेनिंग जो है वो मोस्टली ब्लूम टैक्सोनॉमी के बेस पे था सर, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन CBSE बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग और बच्चे के अंदर एनालिसिस, क्वेश्चन को किस तरह एनालिसिस करने का जो पावर है बच्चे में, वो चेक किया जाता है सर। तो यहाँ पे रेमेडियल क्लास में हमें मौका मिल जाता है सर। हमें क्लास में 40 मिनट मिलता है, यहाँ पे काफ़ी वक्त हमें मिल जाता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो बच्चे का तो रात को बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो हम उनका आंसर भी दिया जाता है सर। बच्चे को अगर कोई प्रैक्टिकल वर्क में कोई प्रॉब्लम है बच्चे के, ख़ास कर क्योंकि JK बोस में ज़्यादातर जो फोकस था वो ज़्यादातर रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस था सर। और जो CBSE में है ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल कम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है सर, जिसकी वजह से हम ज़्यादा बच्चे की क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सर। और क्वेश्चन जो CBSE में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट नहीं आता है सर, घुमा फिरा के आता है। तो बच्चों को रात को काफ़ी जो कमज़ोर बच्चे हैं सर, यहाँ पे वही रेमेडियल क्लास बेस्ट रहता है उन कमज़ोर बच्चों को जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग कमज़ोर है, क्वेश्चन एनालिसिस का पावर कमज़ोर है सर। उनके लिए ये जो रेमेडियल क्लास है उनके लिए बहुत बेस्ट है सर। क्या एज ए टीचर आप खुश है सर रात को स्टूडेंट्स के साथ बैठ के उनको साथ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं सर? बिल्कुल ये बात सही है सर, क्योंकि हमारा जो सैलरी आते हैं, हमारा तनख्वाह जो है इन बच्चों की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए ठीक है सर, अगर कोई कमज़ोर बच्चा है, हम चाहते हैं एज ए टीचर्स कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे लर्नर्स हैं, वो पास हो जाए सर। अगर वो बच्चों के अंदर कुछ कमी रहता है सर, तो हम एज ए टीचर्स हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उन बच्चों की कमज़ोरी को दूर करके एक अच्छा काबिल बच्चा स्टूडेंट्स बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सर, वो एक टीचर्स का होता है। तो एक जगह पे हम खुश भी है, क्योंकि कमज़ोर बच्चे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे उनको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ngemi Farzana Batulzabat nga government high school tam misain. Sir nga changa di fayda yon duki malab hostel jakpana malab khas kar nga tang bomo sa fayda yon duki kyunki nga tang khangma zyada la shinduk se ka silchek michat pin di hostel homana zyada se nga tang syllabus cover shinduk sir, kyunki remedial class tamana nga tang syllabus cover shindu और nga tang malab exam fila tayari shinduk sir tu na nga chang malab jo nga chi sir teacher sakdiyan duk pana nga chang class test saktamana nga chang odan kafi improvement on tu na nga chang malab क्वेश्चन चिक जो आज सॉल्व मैच है उतना दिया आज सर पर सॉल्व बना आज ओदन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो तो सर। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा चल रहा है। जो इस तरह से जो एंट्री यानी रेमेडियल टीचिंग जो है बच्चों को हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का प्रोग्रेस जो है एजुकेशन प्रोग्रेस बढ़ने में थोड़ा इससे भी आगे पढ़ने का उनको या पढ़ाने का बहुत इंटरेस्ट होता है। जो तो इंशाल्लाह इससे भी अपने जो जितने बच्चों के मतलब अंदर जो टैलेंट है उनको मतलब शेयर करने का, उनको मतलब आउट करने का बहुत मौका मिलता है। क्योंकि एक तो इसमें से 5 बच्चे या 10 बच्चों में से एक बच्चा जैसे कि कमज़ोर होगा, मान लो 10 बच्चे में से एक बच्चा जो अच्छा होगा पढ़ाने में, तो पढ़ाई में तो
दूसरा भी इसी तरीके से उनके साथ साथ चलने में उनको मौका मिलते हैं जो खासकर एज ए टीचर क्या किस तरह से देखते हैं सर, क्या आने वाले दिनों में इस तरह की कोचिंग होना चाहिए? मेरे ख्याल में सर इसको आने वाले दिनों में तो पूरा इसको मतलब परमानेंट इंस्टॉलेशन होना चाहिए, क्योंकि ये अगर कुछ साल चले या कुछ मुद्दत चले तो इससे तो कुछ बच्चों के ऊपर इतना फोकस नहीं होगा सर, क्योंकि इसको पूरा अगर कंटिन्यू रहेगा तो बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोसेस बनेगा और एक ऐसा मतलब सिस्टम बनेगा ताकि बच्चे लोग आगे जाकर काफ़ी कोशिश करेंगे। क्योंकि जितना यहाँ आप लोग पता है हमारे रूरल एरिया में जितना गरीब बच्चे हैं उनको इस हॉस्टल में रह के मतलब टाइम का खाना, टाइम का पढ़ाई, टाइम टेबल के हिसाब से उनको पढ़ाने का मौका मिलता है। वर्दी डायरेक्टर साहब की या चेयरमैन साहब की और इसी जाकिर साहब की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ पब्लिक का जो है पेरेंट्स का ख़ासकर उनका इस साल पिछले साल तो इतना साथ नहीं दिया था, लेकिन इस साल अल्लाह के फजल से जितना भी पेरेंट्स साहिबान है उन्होंने अनथक कोशिश करके अभी तक हमारे साथ दे रहा है। तो हमें फ़ख्र है कि हमें उम्मीद भी है कि पिछले साल की निस्बत इस साल रिज़ल्ट जो है वो बेहतर आने की उम्मीद भी है और इसी तरह अगर ये चलते रहे ठीक भी है। लेकिन हमें इसमें एक बात है कि अगर इंसेंटिव्स दिया जाए, क्योंकि हमारे रूटीन बेस से हम स्टाफ रखते हैं तो उनका यही मांग होता है कि हमें इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो हमें कर रहा है तो ये एक्स्ट्रा के पार्ट के हिसाब से ये चल रहा है। तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से एज ए हमें हाई अथॉरिटी की ऑर्डर के हिसाब से हम अच्छी तरह अपना इंजाम जो है पूरे अमले हमारे स्टाफ मेंबर्स पेरेंट्स सब मिल के चला रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल जो है आइंदा इसी तरह चलते रहेंगे और हमारा रिज़ल्ट जो है वो इंशाल्लाह बेहतर आने की उम्मीद है। टर्म भी से एक ऐसा इलाका है जहाँ आपको बताते चलूँ तो यहाँ पर 1.5 घंटे के लिए सूरज ही दिसंबर में तुलू होता है, फिर कम से कम घंटा और 1.5 घंटे के लिए फिर गुरूब हो जाते हैं। तो यहाँ हमें थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे इस साल पहली बार ये हमारे रेमिडल जो है कोचिंग रेजिडेंशियल रख रहा है, क्योंकि पिछले साल हमने नहीं रखा था, पेरेंट्स जो साथ नहीं दिया तो हमने डे चला रहा था। तो अभी बच्चे जो है पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन दिन ब दिन यानी सर्दी बढ़ रहा है तो हमें पानी की बहुत किल्लत है, क्योंकि यूँ ही स्कूल छुट्टी होते ही यहाँ जो है पानी बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो हमें चाहिए कि हमने इसी साहब को भी यहाँ गुजारिश किया, सीओ साहब से भी हमने गुजारिश किया है कि हमें यहाँ हैंड पंप की बहुत इशद ज़रूरत है और बच्चों को यहाँ हमने 4 कमरे में रखा है तो इनके लिए कमरों को पेनलिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर ये सब फैसिलिटी हमें है आए तो इंशाल्लाह हमें और हमारे स्टाफ मेंबर्स को इंसेंटिव की जो है वो आए तो वो भी खुश होते हैं, क्योंकि और पार्ट ये काम है तो इंशाल्लाह हमें अच्छी तरह बेहतरी की तरीके से हम चलने की कोशिश कर भी रहे हैं और करेंगे भी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल जो है हमारा रिज़ल्ट बेहतर होगा। शुक्रिया। ये यकीनन इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है बच्चों को। ये हम आज नहीं हर रोज़ इस तरह से हम हर जगह विज़िट करते हैं और उसमें हमें पता चलता है कि पहले बच्चों में जो जो कमज़ोरी थी, बच्चों का यही कहना है कि उनका फीडबैक यही आता है कि अब हमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है और इसको कंटिन्यू होना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और वो शुक्रिया अदा भी करते हैं बहुत सारे बच्चे कि आपने जो ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने LSDC करगिल ने इनिशिएटिव लेकर के जिस तरह से बच्चों के लिए ये इंतज़ाम किए हैं उनसे वो बहुत खुश है। इसमें टीचर्स का भी सपोर्ट बराबर है, उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि टीचर्स जो है उनको अपने जो उनके लिए जो लिमिटेड आवर्स का ड्यूटी होता है उसके बगैर उसके अलावा वो 24 घंटे तकरीबन यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। उनका सपोर्ट जो है बहुत अच्छा है। बच्चों का भी यही फीडबैक है कि टीचर्स जो है हर लिहाज से उनको गाइड कर रहा है, जहाँ जहाँ उनको डिफ़िकल्टीज आते हैं, न केवल क्लास पढ़ाने में बल्कि बारी बारी से हमारे फीमेल टीचर्स, मेल टीचर्स जो है वार्डन का भी देखभाल कर रहा है, वार्डन का भी ड्यूटी निभा रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर यही हमारा अगर रवैया रहा, यही इसी तरीके से हम करेंगे तो यकीनन हमारे बच्चे जो है आने वाले दिनों में जितने भी उनको पढ़ाई में दिक्कतें, जितने भी हम कहते हैं कि हम थोड़ा पिछड़े हुए हैं बाकी
दूसरे इलाकों से, तो यकीनन वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी जल्द अज जल्द। और एग्ज़ाम के टाइम में हमारा बच्चों का परफॉर्मेंस पिछले साल की बनिस्बत मुझे लगता है कि इस साल बिल्कुल अच्छा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बच्चे फीडबैक दे रहे हैं, जिस तरह से टीचर्स अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, उससे यकीनन इसका फ़ायदा बच्चों को हो रहा है। फीडबैक हर जगह से यही हो रहा है। और जिस तरीके से सीसी साहब और ईसी साहब और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के सपोर्ट से जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है, उनसे बच्चों को यकीनन फ़ायदा हो रहा है। इसका फीडबैक हमें हर जगह से यही आ रहा है। तो ये जो हमारा रेमेडियल जो क्लासेस ख़ासकर सेकेंडरीज एंड हायर सेकेंडरीज के लिए चल रहे हैं, सितंबर के 2 तारीख से ख़ासकर यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। तो इसके रखने का मकसद ही है कि कम से कम हमारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। जो इनमें कमज़ोरी हो किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या ओवरऑल सब्जेक्ट में, इनकी कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। और इसमें ख़ासकर हमारे टीचर बरादरी का मैं तो उनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने अपनी घर की मसरूफियात को छोड़कर, अपने प्रॉब्लम्स को से हट कर अपने बच्चों की मुस्तक़बिल के लिए, अपने कौम की मुस्तक़बिल के लिए ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। और ख़ासकर इसका तो बहुत ही हमें फ्रूट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी भी हम इस तरह से रेजिडेंशियल इस वक्त रेमेडियल क्लास में जाते हैं देखने के लिए, तो हमें बच्चों से फीडबैक अच्छे मिल रहे हैं और बहुत से बच्चों को इसका प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रहा है और बच्चे भी इससे मुतमईन हैं और हमारे स्टाफ्स भी इससे काफ़ी मुतमईन है। और उम्मीद है उनको कि आइंदा आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें इनका अच्छा ही परफॉर्मेंस होंगे। तो रेमेडियल क्लास की बात करें तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और आगे भी ऐसे रेमेडियल क्लास होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदेमंद होती है। बाद में पहले पीरियड्स में जब 10 बजे से 4 बजे तक जो टाइम है उसमें हम लोग सिलेबस पे फोकस करते हैं और रेमेडियल क्लास में हम लोग उसके डाउट्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ये रेमेडियल क्लास रखना। अगर घर में रह के पढ़ाई करना और हॉस्टल में इस तरह के रेमेडियल हॉस्टल में बैठ के पढ़ाई करना, कितना फ़र्क है उसमें? वो बहुत गैप है। पहले ही मतलब जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारे हाथ में होता है वो मोबाइल फ़ोन, उससे छुटकारा पाते हैं हम लोग। और यहाँ पे आके हमें बहुत फ़ायदेमंद होते हैं घर से ज़्यादा, क्योंकि घर पे हमें बहुत डिस्ट्रैक्शन दिखने को मिलता है। कभी जब पढ़ाई में थोड़ा पढ़ने लगता है तो कोई दरवाज़ा पे आके बुलाता है, कोई आता है बुलाता है, तो मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। और यहाँ पे आके सबसे पहले हमारे हाथों से मोबाइल छूट जाता है और यहाँ पे आके हमें टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, कैसे वो लोग मतलब टाइम को मैनेज करते हैं, हमें मतलब सब ये इसका मैनेजमेंट मिल जाता है। तो हॉस्टल बहुत अच्छा है और मैं थैंकफुल करना चाहती हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम रखा। इनिशिएटिव जो है वो लास्ट सेशन में हुआ था। सीबीएसई का जो हमारा पहला एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, तो उस वक़्त ये विंटर में चला था। अभी समर में ये रेजिडेंशियल कोचिंग्स यहाँ पे चल रहे हैं सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो जहाँ तक हायर सेकेंडरी टिस्पून का सवाल है, यहाँ पर हमारा जो एनरोलमेंट है वो मैट्रिक में 36 स्टूडेंट्स हैं और 12th में तकरीबन 150 हैं। तो इसमें से अगर आप हॉस्टलर्स की बात करेंगे तो 170 प्लस जो है वो अभी हॉस्टल में रिजाइड हुए हैं और यहाँ पर बैठ के वो अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक बच्चों और पेरेंट्स का फ़ीडबैक है तो वो इसको एक अच्छा मौका समझते हैं, क्योंकि बच्चे घर में ज़्यादातर मोबाइल के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर हमने मोबाइल जो वो पूरा बैन करके रखा हुआ है, तो बच्चे मोबाइल से भी दूर रहते हैं। तो बच्चों का जब हम फीडबैक लेते हैं तो वो कहते हैं कि घर से हमें अच्छा जो टाइम मिलता है पढ़ाई का वो हमें हॉस्टल में मिल रहा है। तो ये बच्चों के लिए के फ़ायदे के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और भी बाकी चीज़ें सीखने को मिलता है, जैसे किस तरह से एक दूसरे के साथ बैठना है, एक दूसरे का कल्चर, एक दूसरे का रहन सहन बच्चे जान सकते हैं। तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है।
مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔